Good morning, students. Today's chapter is hemoreproduction. Reproduction is the formation of new individual of the same kind. It is an important characteristic of the all living organisms. Word reproduction consists of two words re plus again and production, जिससे दोबारा सेम कॉपी प्रोड्यूस किया जा सके. Reproductive system in human beings. We are going to read human reproductive system. Sexual dimorphism is clearly marked in human beings. Male and female both are separate. Male sex bears a pair of testes, which are known as sperms, produce sperms. Female sex organ bears a pair of ovaries which produce female gametes called ovum. In plural form ova. Ovaries can produce female sex hormones such as estrogen and progesterone. Sexual dimorphism. When male and female individuals of same species can be distinguished on the basis of their distinct morphological features, the phenomenon is called sexual dimorphism. The growth and development of testes and ovaries is promoted by pituitary gland. These include FSH यानी follicle stimulating hormone and second LH यानी luteinizing hormone और ICSH यानी interstitial cells stimulating hormone. Next, important terms related to sexual reproduction in animals like fertilization is another word, syngamy. The fusion of male and female gamete and mixing of their nuclei is called fertilization or syngamy. Syn means होता है fuse. This process result in the formation of zygote. Zygote, it is a cell which is formed as a result of fertilization. It is the first cell of animal. Gamete. Gamete are the reproductive haploid cells. These are produced male and female sex organ using meiosis. Gametes are haploid structure. Male gametes are usually sperms, while female gametes produces ova. This is all our definitions. Gametogenesis, the formation of gamete is called gametogenesis, and formation of ova is called oogenesis. Cross fertilization, it is an advanced type of fertilization where the gametes of two different individuals, one is female and another is male, are fused to form zygote. Bisexual, monoecious or hermaphrodite. When both types, male and female sex organ, are present in same individual, the animal is called bisexual, hermaphrodite or monoecious, like earthworm, leech and taenia. Unisexual, dioecious, the majority of animal male and female reproductive organs are present in different individuals of same species. In another word, the one individual contains only one type of sex organ. Viviparous, the animals which do not lay egg are called viviparous animal, like human and most mammals. Oviparous, animals which lay eggs are called oviparous animal. Okay. Gestation and pasteurization. Gestation, the entire period of pregnancy from fertilization to pasteurization is called gestation period. After the completing the gestation period, the baby come out of the mother's body is called delivery or pasteurization. Primary and secondary sexual characters. The sex organ which produce gametes and sex hormones are called primary sex organs. In male, primary sex organs are testes. These produce male gametes called sperms. In female, primary organs are one pair ovaries. These produce female gametes called ova. Secondary sex organ are those organs which do not produce gametes but play important role in reproductive process. The secondary sex organs of male are penis, epididymis, vasa differentia, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, corpus gland. The secondary sex organs of females: vulva, clitoris, vagina, uterus, fallopian tubes, mammary glands, gonads glands and Bartholin glands. First, male reproductive system in human beings. First, testis. The testis are the primary male reproductive organ, जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, जहाँ मेल प्लस जो है मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं. हैड अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम विच सस्पेंडेड लोअर ऑफ द बॉडी. Scrotum helps in the maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. देन बॉडी टेम्परेचर से इतना कम होता है. इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज इन ओवल शेप एंड लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर विथ 2 to 3 सेंटीमीटर. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. वैसा डिफरेंसिया, टेस्टिकुलर सेप्टा, ट्यूनिका वेजाइनलिसिस. दिस इज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इसी ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स फॉर्म होते हैं और यहाँ से पास आउट होते हैं वैस डिफरेंसिया के थ्रू. दिस इज अ पार्ट नेम. ये हिस्टोलॉजी है टेस्टिस का, जिसमें कट हो रहा है. यहाँ पे आपको बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रहे हैं.
इसमें ये बहुत सारे स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके साथ में ये सर्टोली सेल दिए हैं। सर्टोली सेल को नर्स सेल भी बोला जाता है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी रखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, दीज आर लार्ज सेल्स प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल्स, जिनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेनिस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, टेस्टिस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू फॉर्म, ताकि जो है ये स्पर्म फॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज सेमिनल वेसिकल्स, दिस इज ऑल आर prostate, Cowper's gland, urethra, all accessory gland. This is a diagram of male reproductive system. यूरिनी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। यूरेटर है, ये टेस्टिस है इन पेयर। ओके, यहाँ से टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होता है, यहाँ से होते हुए आता है। पहला यहाँ पे ग्लैंड है। आपको एक तो ये पेयरिंग में, टेस्टिस पेयरिंग में होता है, पूछा जा सकता है कौन कौन से ऑर्गन पेयरिंग में होते हैं। प्लस दूसरा है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कि पेयरिंग में है, जिसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पीछे है, इसे जिसे सेमिनल वेसिकल्स बोला जाता है। ये जो बंच लाइक स्ट्रक्चर के रिकमेंड दिया गया है, इसका काम होता है बल्क में 70% स्पर्म, अगर जितना भी स्पर्म आउट होता है बॉडी से, उसमें से 100% में से 70% जो है सेमन प्रोड्यूस होता है और 30% ही स्पर्म होता है। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सेमन में क्या क्या होता है, सिट्रेट्स, कैल्शियम, फ्रक्टोज, इनोसिटोल, हाइलुरोनाइडेज है, एंजाइम्स है विच हेल्प इन दी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो पिंक कलर का बैक साइड में वॉलनट के, एक बड़े वॉलनट की तरह दिया हुआ है, जिसका काम होता है फ्लूइड विच मिंगल्स विद द सिक्रीशन ऑफ टेस्टिस, अमाउंट ऑफ 20% द वॉल्यूम ऑफ सेमन जितना होता है उसका 20% जो है प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है। और ये जो सिक्रीशन है वो एसिडिक नेचर में होता है। कॉपर्स ग्लैंड, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है बल्क में, तो यहाँ पर जो है कॉपर्स ग्लैंड है, ये भी पेयर में है, बोथ साइड है। वैसा डिफरेंसिया प्लस यहाँ से रिमूव होता है, पेयर में है, ये भी पेयर में, प्रोस्टेट पेयर में नहीं होता है, सेमिनल वेसिकल्स पेयर में होगा, टेस्टिस पेयर में होगा, प्लस कॉपर्स ग्लैंड भी पेयर में है। यहाँ पेनिस के थ्रू जो है स्पर्म आउट बॉडी से रिलीज होता है, प्लस यूरिनेशन भी इस पेनिस के थ्रू होता है, मींस स्पर्म और यूरिन का सेम पाथवे है। पेनिस इज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच हैंग्स डाउन इन द फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। दिस इज अ टियस ऑफ पेनिस। यहाँ पर ये दिया हुआ है, यूरेथ्रा पाइप है, ये कॉपर्स स्पॉन्जियम है, बने हुए लेयर, ये वेन है, नर्व सिस्टम्स है, ब्लड साइनसेस है। ओके, ह्यूज क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से पेनिस का इरेक्शन होता है और कॉपुलेशन में हेल्प करता है। सेमन इज ए विस्कस एंड वाइटिश लिक्विड होता है। सेमन में जो है स्पर्म होता है 30%। अमाउंट की बात करते हैं तो 1 टाइम में 3 to 5 ml जो है इजेकुलेट होता है, रिलीज होता है। सून आफ्टर इजेकुलेशन द सेमन अंडरगोज क्लॉटिंग, but after 20 minutes the clot liquefied. Sperm count, number of sperm present in 1 milliliter of semen is called sperm count. 1 milliliter में चेक किया जाता है। हेल्दी मैन में जो है 40 to 200 million per ml of semen होता है। If semen count is less than 20 million there is a usually but sterility आ जाती है। Next is female reproductive system in human being. External organ vulva of female. Vagina is a muscular structure contacts with the vestibule. इट इज़ 3 to 5 इंचेस लॉन्ग, लंबा होता है, जिसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, पास्चुरेशन भी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर, फंडस ऑफ यूट्रस, ओवरी पेयर में है, देन फिम्ब्रिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओवरी एग रिलीज करती है। ओके, फिम्ब्रिया उस एग को कैच करती है और यहाँ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब से होते हुए वो आ जाता है यूट्रस में। दिस इज़ अ बॉडी ऑफ यूट्रस, कर्विक्स ऑफ यूट्रस, यूट्राइन इंडोमेट्रियम लेयर है, कर्विकल कैनाल, वेजाइना। प्लस जब ये ओवरी ऑल्टरनेटिव रिलीज होता है, मतलब एक बार अगर इस साइड से एग रिलीज हुआ है देन नेक्स्ट टाइम से इस साइड से रिलीज होगा, मीन्स ऑल्टरनेट पे मंथली रिलीज होता है। आके यहाँ पे मूवेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, अगर
फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन ओके, अदरवाइज एग जो है बॉडी से रिलीज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में, जिसे ब्लीडिंग पीरियड भी बोला जाता है। 4 to 5 डेज चलता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। होने के बाद जाइगोट बनता है, फिर मेस्ट्रुला, फिर क्लीवेज, मेस्ट्रुला, गैस्ट्रुला, सब बनने के बाद जो है ये वो आकर, या इस साइड जिस भी साइड से आ रहा है यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी किसी भी साइड आकर इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद जो है उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यूट्रस में, और मैच्योर होने के बाद वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। सेक्शन ये दिखाई दे रहा है वो एग वोल्यूशन का है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, डेवलपमेंटिक ऑफ फॉलिकल दिया हुआ है, मैच्योर हो रहा है, मैच्योर फॉलिकल स्ट्रक्चर है, मैच्योर फॉलिकल है ये भी, जो ऑलमोस्ट पीरियड के 13 डेज में हो जाता है, 13-14 डेज में मैच्योर हो जाता है। उसके बाद ये रैप्चर हो जाता है 15-16 डेज में, क्योंकि एग जो है 2 डेज सर्वाइव करता है। उसके बाद जो ओवोल्यूशन हो गया, अब यहाँ से एग रिलीज हो गया है, ग्रेफिन फॉलिकल धीरे धीरे क्या होता है फिनिश हो जाता है। देन दिया है ओवरी हैज़ 3 फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ओवा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यूट्रस वॉर्म पे है, यूट्रस वॉर्म सिंगल होता है, थिक मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड बना हुआ होता है, जिसे वॉर्म भी बोलते हैं। स्मूथ मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें मायोमेट्रियम भी बोला जाता है, और म्यूकस विच लाइन्स कॉल्ड साइड द इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम बोलते हैं इंटरनल साइड को। इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। तो इंडोमेट्रियम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस को मैनेज करता है।